मैं रेखा अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ यूएनएन न्यूज टॉप 10 में। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। कई गैर सरकारी संगठनों का एक समूह द वॉइस ऑफ मवलाई पीपल लोगों की मांग के अनुसार चेरेस्टरफील्ड थांगखिव मुठभेड़ में शामिल शीर्ष पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने में राज्य सरकार की देरी के विरोध में सोमवार को एक चाकू समर्पण रैली आयोजित किया गया। सोमवार को पूर्वी खासी हिल्स के जिला प्रशासन द्वारा समूह के सदस्यों को 31 अगस्त को दिए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए अधिसूचित अंतिम तिथि भी है। Panilihat rekan lagi nanti sasang bos naslo belum ngilong kibla keluar bang pedang no yang kecil pedang jopi hane hamok lai betul pom di nanti gitu kiba lapik krek dari kadang kecil gitu pangangin rai dari sejurong pakinian dan kebajai-jai wei ngilalai bang yang ini kalali pedang dari Tegumpa yang kejengayat patba da kema jai-jai kubli shibun शिलांग स्काउट एंड गाइड में सोमवार को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां मेघालय के शिक्षा मंत्री लेकेमेन रिम्बुई ने शिक्षकों को सम्मानित किए। In all the future endeavors. But as a government, we have to find ways and means how to resolve the issues. And as I used to say that education is a very dynamic, and the department itself have to work to innovate itself, how it is working, to see that the policy of the government, to see that new teaching method reach the teachers so that they could disseminate it to the student. चावल घोटाला की जांच के प्रगति के बारे पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए आबकारी मंत्री किरमेन शिला ने बताया कि जांच सही दिशा में चल रही है और इस बारे में वे अभी ज्यादा कुछ बता सकते क्योंकि चावल घोटाला अभी जांच के दायरे में है। As of now, I would not like to say anything against this because as of now it is under this the inquiry, which is not correct for me to say anything about it. We are just waiting. I myself, I don't know what is going on, how is it, so I'm just waiting for the inquiry to give us the report. मेघालय के आबकारी मंत्री किरमेन शिला ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कोरोना काल के समय शराब की होम डिलीवरी को लेकर हर मापदंड को ध्यान में रखकर नियम तय किए गए थे। साथ ही शिला ने यह भी कहा कि कोरोना काल के दौरान आबकारी विभाग का ध्यान शराब से कर उगाही पर नहीं था बल्कि उन लोगों की जरूरत को पूरा करना था जो शराब के आदी हो चुके थे। साथ ही शिला ने राज्य में बढ़ते हुए नशीली अवैध दवाओं और उससे होने वाली आत्महत्या के चलन के ऊपर भी बात करते हुए बताया कि नशा से मुक्ति दिलाने में सबसे अहम भूमिका परिवार की होती है। वहीं शिला ने नशीली दवाओं के खिलाफ राज्य सरकार के तरफ से उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। So when it comes to drugs, it's very difficult. But yeah, our team, the awareness program, we give it from time to time, and then the family members also, I would like to request them they should come forward and reveal what is going on in their family. If it happens to be the family member using drugs, it should be revealed to the public because he has nothing to be ashamed of. Yeah, it is. We can consider it as a sickness where it can be treated if we work as a team, if we work together, join hand with the department, with the government. There's nothing cannot be treated. But when you hide it, it will be very difficult. The difficulties of those users. Nothing to be encouraged with this. Those who are eligible to take, whether you have a delivery or not, for them they will take it, no doubt. If like me, if I want to take, I'll go and buy it.
If I don't want, whether if they deliver also, I will not call. So here all it comes to the last decision. I mean the last discussion is that the willingness of the users is here. If he wants to have it, nobody can stop. If he don't want to have it, nobody can force him to have it also. So, but still, I will not go against Bapala what he mentioned. So maybe he's right on his part, but here we did it legally, and I feel that we, from the department, we have the rights to allow it also, and then it's not that we go against the government norms. So it's as per norms, and then rules and regulation, we all have it. ग्रेटर शिलांग प्रोग्रेसिव हॉकर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन ने आज पार्किंग लॉट पोलो में एक कार्यक्रम आयोजित कर इस साल कक्षा 10-12 स्नातक पास करने वाले हॉकरों के बच्चों को सम्मानित कर उन्हें नगद राशि प्रदान की। Musima Mama, congratulations. She's a bachelor. राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब लाभार्थी सितंबर महीने से अपने पसंद के राशन डीलर के यहां से राशन उठा पाएंगे। यानी अब आप राशन के डीलर को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं। इसे लेकर सरकारी ज्ञापन जारी किया गया है। इस अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपके पास राशन कार्ड लेकर राशन लेने आए, चाहे वो आपके यहाँ लाभुक नहीं हो, लेकिन किसी को वापस नहीं लौटाना है। दूसरे डीलर के राशन कार्ड धारी भी अगर आपके पास राशन लेने के लिए आए तो उसे हर हाल में राशन देना है। लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, दरअसल राशन का उठाव करने वाले कार्डधारियों के साथ एक समस्या यह रहती है कि कुछ राशन डीलर काफी मनमानी करते हैं, लेकिन अब इस व्यवस्था के बहाल होने के बाद अब लाभुकों के पास यह ऑप्शन रहेगी कि वे ऐसे डीलरों के पास से राशन उठाना ही बंद कर। व्हाट्सएप जल्द ही कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन्स में से अपना सपोर्ट वापस ले रहा है। दरअसल 1 नवंबर से पुराने स्मार्टफोन्स पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ऐप हर साल पुराने स्मार्टफोन्स पर अपने सपोर्ट को बंद करता है। वहीं अब कंपनी ने ऐसे 40 से ज्यादा स्मार्टफोन्स की लिस्ट जारी की है जिनमें अब व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा। आइए जानते हैं इनमें कौन कौन से स्मार्टफोन्स शामिल हैं। व्हाट्सएप 1 नवंबर से एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के कुछ पुराने स्मार्टफोन्स में काम नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एंड्रॉइड 4.04 पर चलने वाले स्मार्टफोन्स पर 1 नवंबर से व्हाट्सएप नहीं चलेगा। यही नहीं, iOS 9 पर चलने वाले आईफोन्स पर भी कंपनी अपना सपोर्ट बंद कर रही है। 1 नवंबर से सैमसंग गैलेक्सी ट्रेंड लाइट, सैमसंग गैलेक्सी ट्रेंड 2, सैमसंग गैलेक्सी S2, सैमसंग गैलेक्सी S3 मिनी, सैमसंग गैलेक्सी X कवर 2, सैमसंग गैलेक्सी कोर और सैमसंग गैलेक्सी S2 के यूजर्स अपने फोन में व्हाट्सएप नहीं चला सकेंगे। इनमें भी नहीं चलेगा व्हाट्सएप। 1 नवंबर से जिन स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करेगा उनमें LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L32 Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L52, Optimus L5 Dual, Optimus L32, Optimus L7, Optimus L72 Dual, Optimus L72, Optimus F6 Inact, Optimus L42 Dual, Optimus F3, Optimus L42, Optimus L22, Optimus भी शामिल हैं। इन स्मार्टफोन्स में भी नहीं करेगा सपोर्ट। इसके अलावा सोनी एक्सपेरिया माइरो, सोनी एक्सपेरिया न्यूएल, एक्सपेरिया आर्क एस, हवाई असेंट G740, असेंट मेट, असेंट D क्वाड XL, असेंट D1 क्वाड XL, असेंट P1S, असेंट D2, ZTE ग्रैंड S फ्लेक्स, ZTE V956, ग्रैंड X क्वाड V987 और ग्रैंड मेमो स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप 1 नवंबर से सपोर्ट नहीं करेगा। GST की घटी दरें आज से लागू। सिनेमा टिकट, कैमरा समेत कई चीजें हुई सस्ती। सरकार ने जिन 23 वस्तुओं और सेवाओं पर GST दर घटाने का ऐलान किया था वे आज से लागू हो गई हैं। इनमें मूवी टिकट से लेकर टीवी और उनके मॉनिटर स्क्रीन शामिल हैं। ग्राहकों को अब ये पहले से सस्ते मिलेंगे। 22 दिसंबर को GST काउंसिल ने फैसला किया था 23 वस्तुओं और
सेवाओं पर जीएसटी रेट घटाने का फैसला किया था। इनमें मूवी टिकट, टीवी, मॉनिटर स्क्रीन, पावर बैंक, फ्रोजेन और प्रिजर्व की गई सब्जियों पर टैक्स घटा दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने कई वस्तुओं और सेवाओं को 28% के ऊंचे टैक्स स्लैब से हटा दिया गया है। हालांकि लार्ज स्क्रीन टीवी, सीमेंट, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और विलासिता की कुछ अन्य चीजों पर 28% टैक्स बरकरार है। इन चीजों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। मेघालय विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। उस सत्र में कांग्रेस को मजबूत विषय मिला है। कांग्रेस ने कहा है कि राज्य में विधानसभा सत्र के दौरान एचएनएलसी के पूर्व नेता चेस्टरफील्ड थांगख्यू की एक मुठभेड़ में हत्या का मुद्दा उठाएगी। बता दें कि मेघालय विधानसभा का सत्र 10 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगा। उग्रवादी समूह एचएनएलसी के पूर्व नेता चेस्टरफील्ड थांगख्यू 13 अगस्त को मेघालय पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। इस बीच मेघालय सरकार ने घटना की न्यायिक जांच शुरू कर दी है। मेघालय कांग्रेस ने भी विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है, जिसमें मेतबा लिंगदो को हटाने की मांग की गई है। प्रस्ताव पर मेघालय कांग्रेस के 4 शीर्ष विधायकों जेनित संगमा, एचएम शांगप्लियांग, जॉर्ज लिंगदो और किम्फा मारबानियांग ने हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रस्ताव मेघालय विधानसभा के आयुक्त और सचिव को सौंपा गया है। हालांकि कांग्रेस ने प्रस्ताव पेश करने की कोई खास वजह नहीं बताई है। अफगानिस्तान में विद्रोहियों का आखिरी किला पंजशीर घाटी भी ढहता नजर आ रहा है। पंजशीर एक ऐसा किला था जिस पर सोवियत सेना भी कब्जा नहीं कर पाई थी। उसे तालिबान ने पाकिस्तानी एयरफोर्स और आईएसआई चीफ की मदद से लगभग फतह कर लिया है। तालिबान के लिए नाक का सवाल बने पंजशीर घाटी पर कब्जा करने के लिए करीब 3000 आतंकियों और अमेरिकी हथियारों को उतार दिया था। रविवार की रात को तालिबान और पाकिस्तानी सेना ने जमकर खूनी खेल खेला। इस कार्रवाई में अहमद मसूद को बड़ा झटका लगा है और उनके प्रवक्ता फहीम दश्ती और शीर्ष कमांडर जनरल साहिब अब्दुल वदूद झोर की मौत हो गई। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के घर को भी पाकिस्तानी हवाई हमले में निशाना बनाया। अहमद मसूद के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा है कि पाकिस्तान पंजशीर में तालिबान लड़ाकों को हवाई सहायता प्रदान कर रहा है। उसने तालिबान के विरोधी बलों से लड़ने के लिए पाक सेना के स्पेशल फोर्स को पैराशूट के सहारे एयर ड्रॉप भी किया है। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाके कब्जे में लिए गए अमेरिकी हेलीकॉप्टर के जरिए विरोधी गुटों पर हवाई फायरिंग कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।